Good to see you all. This is Hershey, your science mentor. Today we are doing chapter number 10, motion and measure of distances. Distance क्या होता है children? दो चीज़ों के बीच की जो दूरी होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम मोशंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस और उनको मेजर कैसे करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं मेजरमेंट की, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So we have a warm-up exercise. Being on the driver's seat of the car, Sujit was watching the traffic outside and the sights on either side of the road. Suddenly another car overtake his car. एक कार आती है जो सुजीत की कार को ओवरटेक करती है. Oh, that car has greater speed. उसकी स्पीड ज़्यादा थी and his speed meter shows 40 किलोमीटर पर आवर. सो चिल्ड्रन 40 किलोमीटर पर आवर ये हमने कैसे बताया? बिकॉज वी नो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में. आपने मैथ्स में भी इसको किया होगा. किलोमीटर्स में मेजर करते हैं हम डिस्टेंसेस और कितना पर आवर, यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है कार. So what is the 40 kilometer per hour? So this is the speed of the car. Actually this is the measurement of speed. 40 kilometer per hour means that the car was traveling 40 kilometer in 1 hour. Got it children? So in our life we can see the road and streets full of cars, buses, bikes and many other types of vehicle. और क्या होता है ये vehicle हम किस लिए use करते हैं? We are using these vehicles to travel, to move from one place to another. We are moving ourselves and we are also taking good along with us. राइट. सो हम अपना सामान भी लेकर जाते हैं, खुद भी मूव करते हैं. एंड थिंक अबाउट द एंशिएंट टाइम जब लोग ट्रैवल करने के लिए मतलब दे यूज टू ट्रैवल बाय फुट. राइट. अब पैदल चलते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने कितने दिन लग जाते थे, कितने कितने आवर्स, कितने मंथ्स भी लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. या फिर बाद में एनिमल्स को यूज़ करते थे, हॉर्सेस को, और इसके अलावा बुलक कार्ट्स बाद में जब व्हील इन्वेंट हुआ. राइट. So for shorter distance one may prefer using a bicycle or a motorcycle. अगर हमें कहीं हम type of vehicles, right, type of vehicles हम कैसे choose करते हैं? Type of vehicles we are choosing on the basis of distance that we are going to travel. जितना अगर कम distance है तो surely हम कार से travel नहीं करेंगे, हम bicycle prefer करेंगे. लेकिन अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हार्डली 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर distance होगा so we will prefer two wheelers like bike, scooties. लेकिन अगर और ज़्यादा distance है जैसे 50 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स तो then we will prefer the four wheelers. Four wheelers like आप कार से travel कर सकते हो, आप public ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो. राइट. सो इट डिपेंड्स. और अगर आपने लेट्स से 500 किलोमीटर्स या 700 किलोमीटर्स या उससे भी ज़्यादा अगर ट्रैवल करना है सो यू विल प्रेफर ट्रेन, और इससे भी ज़्यादा अगर ट्रैवल करना है देन यू विल प्रेफर प्लेन मोड, एयरवेज. राइट. सो डिपेंड्स ऑन the distance that you are traveling, you are choosing the mode of transport. So while for traveling very large distances such as another country or may you have to move in aeroplane. Right. So the means of transport can be classified into 3 groups. कौन से modes हैं का हमारे land transport, water transport and air transport. Now we will discuss these 3 types of three types of transport one by one. So land transport means the people or the transport that is running on the road. Simple, जो land पे चलता है वो land transport है. जैसे कि हम लोग people, animal, goods, we go or we move from one place to another place by road. Right. और हम जो transport use करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए we call it land transport. For example, bus, car, train, etc. These are some examples of land transport. और train क्या है? ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, बट हमने लैंड ट्रांसपोर्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रोड या रोडवेज और railways. Right. So roadways and railways are the 2 types of land transport. Now come to the water transport. So water transport के examples हैं boat,
ship, sailboat runs over a body of water such as sea, ocean, lake, canal, river to move people or goods from one place to another, right? So हम सिर्फ खुद नहीं जाते हैं, कंट्री से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी वाटरवेज के थ्रू होते हैं। बड़े बड़े शिप्स होते हैं, इनको कार्गो शिप्स बोलते हैं। वो कार्गो शिप्स सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जाते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। सो एयरवेज तो कैसा है? बाय एयर इफ वी आर ट्रैवलिंग तो क्या क्या है? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हॉट एयर बलून, राफेल, ये सब एयरवेज के एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुड यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन देयर वाज नो कार्स और नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? उस समय की बात हो रही है जब न कार थी, न साइकिल थी, कुछ नहीं था। So since man inhabited the earth, he has been on his way to search for food, water and a safe place to live. In the early and ancient days, walking was the most dependable mode of the transportation. So पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते थे और सामान को, जो लोड्स हैं वो भी कैरी करते थे। तो सोचो, खुद भी जाना और सामान को भी, गुड्स को जो अपने साथ यानी खुद उठा कर लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह। जो पहले लोग बाय फुट जाते थे, उसके बाद फिर एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। एनिमल्स लाइक एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, इसके अलावा डंकी हो गए, इन सबको यूज़ करते थे सामान को शिफ्ट करने के लिए। उसके बाद जब व्हील इन्वेंट हुआ, देन हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट्स, ये सब यूज़ होने लगा। Now ancient means of transport, as the time passed on, the man learned to domesticated animals. लोगों को कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना आ गया। अब ऐसा नहीं है ना, आप किसी भी एनिमल के पीठ पर बैठ जाओगे और वो आपको लेकर चल पड़ेगा, नहीं, इट वॉन्ट बी लाइक दिस। आपको फेमिलियर होना ज़रूरी होता है एनिमल से। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया लोगों ने, एंड राइड देम फॉर हंटिंग एंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एनिमल्स को किस लिए यूज़ करते थे? एनिमल्स पर बैठ के वो तो हंटिंग को भी हंटिंग करते थे, क्योंकि तब तक क्रॉप्स को ग्रो करना और ये सब करना नहीं आया था। तो हंटिंग करते थे एनिमल्स के ऊपर बैठ के और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते थे। सो अराउंड 3500 BC the wheel was invented, which led to the discovery to revolutionized modern transport system. So revolution किसका हुआ? फिर धीरे धीरे करके 3500 BC में व्हील इन्वेंट हुआ और वो बेस था हमारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि अगर व्हील ही इन्वेंट नहीं होता तो जो आज हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं सिस्टम, ट्रेन, बस, कार्स, ये कैसे, बाइसिकल्स कैसे राइड कर पाते, हम कैसे ड्राइव कर पाते, राइट? तो ये एक बेस था। ये ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन आया कब? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। Combining the horse and the wheel, the early man discovered the chariot, which was the cheapest mode of transport on the land. अब क्या हुआ? व्हील इन्वेंट हुआ, उन्होंने कार्ट बना दिया, व्हील अटैच कर दिया, और उसको कौन खींचता था, कौन इसको चलाता था? हॉर्स, राइट? So in order to find something safe and beneficial to men, he had to cross the rivers and streams, which gave rise to the waterways transportation. अब उसके बाद नदियों को क्रॉस करना था एक जगह से, क्योंकि इतना ज़्यादा रोड्स तो बने नहीं थे तब तक। तो नदियों को क्रॉस करने के लिए लोगों ने फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और उन्होंने क्या करा? अपने छोटे छोटे बोट बनाने स्टार्ट किए, सो दैट पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। तो पहले क्या यूज़ करते थे? जो ट्रीज़ के ट्रंक होते थे ना, उस ट्रंक को बीच में से हॉलो कर दिया जाता था, उस पर बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे या रिवर को क्रॉस करते थे। द अर्ली ह्यूमन्स हॉलोड आउट ट्री ट्रंक्स। हॉलोड आउट ट्री ट्रंक्स यानी जो ट्रंक्स है बड़े बड़े, उनको बीच में से खोखला कर दिया जाता था, हॉलो कर दिया जाता था, एंड यूज देम टू क्रॉस द रिवर्स एंड स्ट्रीम, पेइंग द वे फॉर वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। विद पैसेज ऑफ टाइम द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज वेल डेवलप्ड एंड लेड टू मेनी इन्वेंशन इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ट्रेन भी आ गए, प्लेन्स भी आ गए। तो अब 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड
air transport. Now we have our activity. Number the following pictures in development order in which they were invented beginning from earlier age to the modern. So यहाँ पर जो pictures दिए हैं इसमें हमें order देना है, order place करना है कि सबसे पहले क्या invent हुआ और उसके बाद क्या आया. मीन्स हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसको पिक्चर्स को अरेंज करना है. सो चिल्ड्रन, आउट ऑफ दीज 4 व्हीकल्स सबसे पहले शिप्स यूज़ हुआ करते थे इनिशियल टाइम पे, क्योंकि पहले स्टार्ट हो गया था बोट बनाना जो ट्री ट्रंक से. उसके बाद छोटे शिप्स बनते थे एंड देन इट वाज इन्वेंटेड. उसके बाद ट्रेन इन्वेंट हुई, देन कार्स आई एंड देन लास्टली एरोप्लेन्स इन्वेंट हुए. राइट नाउ मेजरमेंट एंड इट्स नेसेसिटी. हमें मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत है, मेजरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों मेजर करना पड़ता है, दैट वी विल डिस्कस नाउ. If you further has a means of transport and they want to use public transport to travel from one place to another, then needs to know the distance between the two places in order to estimate the time required to reach the other place. तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेट्स से दिल्ली टू मुंबई जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करोगे, राइट? और कितना टाइम लगेगा आपको, तभी तो आप अपना ट्रैवलिंग प्लान बनाओगे कि आपको कितना टाइम लगेगा दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करने के लिए. अगर आप बाय बस जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, बाय ट्रेन जा रहे हो देन हाउ मच टाइम यू विल टेक, एंड इफ़ यू आर गोइंग बाय प्लेन, बाय एयरवेज, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच टू द मुंबई, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली यू विल प्लान योर ट्रैवल. तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिल्ली टू मुंबई के बीच में कितना डिस्टेंस है. अगर हमें यही नहीं पता होगा, ऐसे थोड़ी ना कि बस सामान पैक किया और निकल गए बॉम्बे के लिए, पता नहीं अब कैसे जाना है, किस तरह से जाना है और कितना टाइम लगेगा. सो मेजरमेंट की ज़रूरत हमें लाइफ में हर एस्पेक्ट में है. अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ मेजरमेंट स्टार्ट होता है. सो देयर आर सो मेनी ओकेजन्स when we come to across to need the measure lengths and distances. इस चैप्टर में हम लेंथ के बारे में बात करेंगे और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. और इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में क्लास 5 में भी हमने मेजरमेंट किया था. यहाँ पर इस क्लास 6 में हम डिस्कस करेंगे लेंथ एंड डिस्टेंस के बारे में, राइट? The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make it. आप टेलर के पास जाते हो अपने कपड़े स्टिच कराने के लिए, तो टेलर को कैसे पता चलेगा, वो आपका मेजरमेंट लेगा, देन ओनली ही विल स्टिच अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, राइट? आपके हिसाब से, आपकी बॉडी शेप के हिसाब से वो स्टिच करेगा. अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कितना क्लॉथ चाहिए, आपको कितना क्लॉथ बाय करना है शॉप से, राइट? तो वो जब तक आपको बताएगा नहीं, आपको मेजर नहीं करेगा, तब तक वो नहीं बता सकता, ठीक है? तो उसके लिए मेजरमेंट ज़रूरत पड़ती है. और फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपकी ड्रेस को स्टिच करेगा. अब सिमिलरली अगर हमारे घर में वुड वर्क हो रहा है, वुड वर्क हमारे को एक कबर्ड बनवानी है, वॉल के अंदर एक कबर्ड बनानी है, तो अब वो कबर्ड की कितनी लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी और कितने कितने एरियाज पर ड्रॉर्स बनेंगे, तो ये कैसे करेगा, कारपेंटर उसको मेजर करेगा ना. मेजर करने के बाद ही विल कम टू नो कि कितना वुड चाहिए, कितना रॉ मटेरियल जिससे वो बनाएगा उस कबर्ड को, राइट? तो ये सब मेजर करने के लिए क्या चाहिए, एक मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम कैसे मेजर करेंगे. ऐसा तो नहीं कि आप अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे दोगे कि इतना ले आओ, इतना कितना, वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है. सो द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स. अब फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड में क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं, राइट? अब कितना बड़ा फील्ड है, कितना फर्टिलाइजर लगेगा, कितना पेस्टिसाइड लगेगा, कितना इंसेक्टिसाइड लगेगा,
कितने सीड्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें कैसे वो मेजर करेगा अगर उसके पास मेजरमेंट यूनिट्स नहीं है, तो उसको नहीं पता कैसे मेजर करना है, तो किस के अकॉर्डिंग मार्केट से चीज़ें परचेज करेगा, राइट। अब जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, वी नीड वेजिटेबल्स फॉर अस, तो अब वेजिटेबल कितनी लेनी है मार्केट से, कितनी हमारे लिए ज़रूरी है, वो जब तक हम वेजिटेबल वेंडर को बताएंगे नहीं, वो कैसे हमें देगा। लेट्स से आई आस्क्ड फॉर 1 kg पोटैटोज एंड हाफ kg बीन्स, तो क्या होगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि मुझे हाफ kg बीन चाहिए, 1 kg पोटैटो चाहिए, अदरवाइज भैया आलू दे दीजिए, पोटैटो दे दीजिए, तो बट कितने, ही विल आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ मच यू वॉन्ट। तो मेजरमेंट की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, राइट। कुछ भी खरीदना है हमें मार्केट से, वी नीड मेजरमेंट कि हमें कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए। इनफैक्ट जब हम कुकिंग करते हैं देन ऑल्सो वी शुड नो कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने क्वांटिटी में डलना है, राइट। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इस चैप्टर में हम सिर्फ लेंथ एंड डिस्टेंस की मेजरमेंट करेंगे। तो अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती है। स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट अब हम इंडिविजुअली करेंगे। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट चिल्ड्रन वो होती है जिसका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता, जैसे कि क्यूबिट, हैंड स्पैन, आर्म लेंथ, फुट स्टेप। अब क्यों इक्वल नहीं होता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी शेप, आपकी हाइट के ऊपर, आपकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा हैंड स्पैन चिल्ड्रन ये इस लास्ट फिंगर की टिप से लेकर थंब की फिंगर तक, अब अगर मेरा हैंड स्पैन कितना है, आपका हैंड स्पैन, अगर किसी का हैंड छोटा है, कोई छोटा बच्चा है तो उसका हैंड स्पैन छोटा होगा, और अगर किसी की हाइट बहुत जो लेंथ है, हाइट है वो ज़्यादा बड़ी है, वो ज़्यादा लंबा है, तो उसका हैंड भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होगा, तो उसका हैंड स्पैन क्या होगा, चेंज होगा। तो सबके हैंड स्पैन चेंज होते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्योंकि अगर मैं ये बोल देती हूँ, अगर टेलर ने बोला कि आप 5 हैंड स्पैन ले आइएगा क्लॉथ, अब उसका हैंड स्पैन और मेरा हैंड स्पैन में डिफरेंस है ना। मैं अगर क्लॉथ लाई, लेट्स से अगर वो ज़्यादा है तो वो बच जाएगा, बट अगर कम आ गया क्लॉथ तो फिर जितना मैंने कटवाया क्लॉथ वो भी बेकार हो जाएगा, राइट। तो हैंड स्पैन, फुट स्पैन, आर्म लेंथ एंड क्यूबिट, ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो एंशिएंट टाइम में लोग पहले इन्हीं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करते थे, जब तक स्टैंडर्ड यूनिट्स डिफाइन नहीं हुई थी। अब सिमिलरली फुट स्टेप यानी कि आपकी जो सबसे बड़ा ये फिंगर है, ये वाला, इसमें ये वाला है, यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे हील के लास्ट तक, इस बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फुट स्पैन बोला जाता है। इसके अलावा आर्म लेंथ, जो आपकी सबसे बड़ी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर की लेंथ से लेकर यहाँ तक आर्म पिट तक, ये पूरा आपका आर्म की लेंथ काउंट होती है। एंड देन क्यूबिट में आपका ये जो रिंग फिंगर है उसकी टिप से लेकर आपकी एल्बो तक, सो दिस इज क्यूबिट। अब ये डिपेंड, हम पहले जो लोग यूज़ करते थे, इतनी सारी जो हम अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके मेजर करते थे, वो क्यों इतने सारे हैं, सबका एक से काम नहीं चल सकता था, नहीं, क्योंकि अगर हमें कोई छोटी चीज़ मेजर करनी है सो वी विल यूज़ हैंड स्पैन, राइट। छोटा, अगर उससे ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ हमें लग रही है और हमें उसको मेजर करना है, देन वी विल यूज़ दिस आर्म वाला क्यूबिट। उससे भी अगर लेंदी है तो हम आर्म लेंथ यूज़ करेंगे। और फुट स्टेप यूज़ करते थे हम कि नीचे फ्लोर की लेंथ या कुछ इस तरीके से मेजर करने के लिए, राइट। तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे। अ फुट स्टेप इज अ डिस्टेंस फ्रॉम हील टिप टू बिग टो, राइट। पीछे से हील टिप से, ये गलत लिखा है बील, तो यहाँ होगा हील टिप टू बिग टो, आगे तक आने में। उसके अलावा हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस मेजर्ड बाय ह्यूमन हैंड फ्रॉम टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच का जो जितना वो रहेगा डिस्टेंस, वो होगा हैंड स्पैन। आर्म लेंथ इज द लेंथ ऑफ आर्म व्हेन आर्म इज फुली एक्सटेंडेड, पूरा ऐसे आर्म खोल के इस रिंग फिंगर से लेकर यहाँ तक ये आर्म लेंथ है। इसके अलावा क्यूबिट जो है वो आपकी मिडिल फिंगर के टिप से लेकर एल्बो तक होता है। तो ये मेनली यूज़ किए जाते थे पहले लोगों, जब तक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन नहीं हुई थी। Now we have an activity, make a group
of 5 students, select a table in science laboratory or your classroom door for measurement. Try to measure the length using your hand pen. Step by step compare your readings. Do all of you measure the same length? अब आपने क्या करा, आपको लैब में क्या किया, आपको बोला गया कि आप 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाओ और उसके बाद एक टेबल अब अपनी लैब में सेलेक्ट करो और उस टेबल को अपने हैंड्स पेन की हेल्प से मेजर करो, राइट। अब 5 बच्चे हैं, पांचों के हैंड्स पेन में डिफरेंस होगा ना, सो यू विल चेक कि पांचों के कितने उस पर्टिकुलर टेबल को मेजर करने के लिए किस बच्चे का कितना हैंड्स पेन रिजल्ट आया, एंड देन यू कैन इजीली कंपेयर, किसी का कम आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का थोड़ा सा मतलब लाइक डिफरेंस होगा रीडिंग में, राइट। तो इसीलिए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड, इट वेरीज, राइट, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. सो द अबव एक्टिविटी प्रूव्स दैट द यूनिट्स यूज्ड इन ओल्डर टाइम वर नॉट रिलायबल. दे वेरी फ्रॉम person to person. Thus there arose a strong need for the standard units that should not vary but remain uniform irrespective of the user or the place. तो फिर क्या ज़रूरत महसूस हुई, ऐसी यूनिट्स डिफाइन होनी चाहिए जिससे कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सेम यूनिट्स यूज़ की जाती है. सपोज आई एम ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर्स, तो किलोमीटर जो डिस्टेंस है, किलोमीटर जो डिफाइंड है, कितना डिस्टेंस है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड वही डिफाइन होगा. तो इसलिए इफ़ समबडी इज सेइंग 50 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, तो वो 50 किलोमीटर इंडिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, चाइना में भी वही है, बाकी कंट्रीज़ में भी वही है, राइट. तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत महसूस हुई. तो अब क्या होता है, अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, एंड वी हैव डिवाइसेस ऑल्सो टू मेजर द डिस्टेंसेस एंड लेंथ. अब सबसे पहले आप स्कूल में क्या यूज़ करते हैं, स्केल, राइट. ये रूलर होता है जिसको हम स्केल कहते हैं, ये लेंथ मेजर करने के लिए होता है. सो इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, जिसको वी यूज़ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ. अब हमारी जो यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने की, मीटर, राइट. स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर. अ टेलर यूज टेप. अब डिपेंड करता है कि हमें इसमें भी जैसे रूलर्स होते हैं, वो छोटे रूलर्स भी होते हैं, बड़े रूलर्स भी होते हैं. इसके अलावा टेलर उसको जो ज़्यादा मेजर करना पड़ता है, इसलिए उनके पास मेजरिंग टेप्स होते हैं. तो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. तो टेलर यूजेस टेप, वेयर एज क्लॉथ मर्चेंट यूजेस मीटर रॉड, राइट. क्लॉथ मर्चेंट क्या यूज़ करता है, आपकी मीटर रॉड यूज़ करता है. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस. यू कैन नॉट मेजर द ग्रोथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. ये भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं. जैसे ट्री को अगर हम मेजर कर रहे हैं, ट्री ट्रंक को लेट से हमें मेजर करना है. अब स्केल तो बिल्कुल सीधा होता है, आप उससे ट्री ट्रंक जो कि सर्कल होता है उसको कैसे मेजर कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेप यूज़ करना पड़ेगा, मीटर टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप इजीली उसको उसके सर्कमफ्रेंस में आप उसको सर्कली उसको बेंड कर सके और मेजर कर सके, राइट. तो रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है. यू कैन नॉट मेजर द ग्रोथ ऑफ अ ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. फॉर इंस्टेंस अ मेजरिंग टेप इज मोर सूटेबल फॉर दिस. मेजरिंग टेप क्या होती है, वो टेप की तरह होती है, वो आराम से बेंड हो जाती है. स्केल बिल्कुल सीधे होते हैं, मीटर रॉड बिल्कुल सीधा होता है. तो आप उनसे जो चीज़ें आपने गोल यानी जिन चीज़ों को आपने ऐसे जो कर्व्ड होती हैं उनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, राइट. सो सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल. अगर पेंसिल की लेंथ चेक करनी है, पेन की लेंथ चेक करनी है, तो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, और वो स्ट्रेट है, सीधे हैं, तो आप उनको अपने रूलर्स से मेजर कर सकते हो ईजिली. So you can use a 15 centimeter scale of your geometry box. जो आपके geometry box में होता है वो 15 सेंटीमीटर वाला होता है, आप उसमें यूज़ कर लो, क्योंकि मीटर की से जो छोटी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, राइट. और हम उसको कैसे लिखते हैं, cm. cm stands for centimeters, राइट.
सो चिल्ड्रन मीटर से भी छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपको पेन की लेंथ मेजर करनी है या इरेजर की लेंथ मेजर करनी है, शार्पनर की लेंथ मेजर करनी है, तो आप इतना बड़ा मीटर रॉड नहीं यूज़ करोगे, आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ करोगे। There are scientific instruments that help you to be accurate in the measurement. The only requirement is the selection of the proper measuring instrument. For example, finding the diameter of a pillar. पिलर का, जैसे हमने ट्री के ट्रंक को चेक किया, तो अगर इस तरह से कोई गोल चीज़ है उसका डायमीटर अगर हमें चेक करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? करेक्ट, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। यू कैन नॉट यूज़ अ मीटर रूलर, यू हैव टू यूज़ अ मीटर टेप, राइट, क्योंकि वो इजीली उसके चारों तरफ घूम जाएगी। जो अब हमें मेजर करना भी आना चाहिए, मेजर कैसे करना है। सो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सबसे पहले द एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी इन द लाइन ऑफ योर विजन। सबसे पहले तो स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मेजरिंग टेप बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मीटर रॉड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए अगर हमें कुछ भी मेजर करना है तो, और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसके कॉर्नर पे रखेंगे, स्केल के कॉर्नर पे नहीं रखना है, जहां से मेजरिंग स्टार्ट हो रही है यू नीड टू स्टार्ट विद इट। सो करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे आपने बिल्कुल सीधा स्केल रखा है, दिस इज द रॉन्ग वे, आप इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको रूलर, मीटर टेप जो भी है उसको बिल्कुल सीधा रखना है। द एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी इन द लाइन ऑफ योर विजन। आप बिल्कुल सीधा देखें उसको, ऐसा नहीं कि आप ऐसा टेढ़ा होके आप कहीं बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, टेढ़े होके बैठे हैं, तो आप रीडिंग गलत नोट करेंगे, राइट। सो आप बिल्कुल, आपका विजन बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नेक्स्ट, इन द मिडल ऑफ द आईज एंड इन फ्रंट ऑफ द नोज, आप बिल्कुल सामने से उस चीज को देखें जब आप मेजर कर रहे हैं। दिस अलाउज योर आईज टू बी एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। उस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आंखें होनी चाहिए, लाइक आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए जो आप मेजर कर रहे हैं। आप कहीं ऐसा नहीं कि इस लेफ्ट से देख रहे हैं, राइट से देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा आप उसको देखें, तभी रीडिंग करेक्ट आएंगी। द स्केल शुड बी in direct contact with the object placed on a flat surface। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है वो फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। किसी, ऐसा नहीं है कि आपका स्केल की अलग जगह पर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप मेजर कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पर पेंसिल मेजर कर रहे हो, वो कहीं और हाइट पे रखी हुई है, सेम सरफेस पर होना चाहिए और वो सरफेस प्लेन होना चाहिए। एनी गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्केल is bound to create an error in readings taken by you। और बिल्कुल साथ में जुड़े हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं अगर लेट्स से ये पेंसिल है और स्केल है तो ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल साथ टच करता हुआ होना चाहिए, तभी रीडिंग करेक्ट आएंगी। द यूज स्केल हैज़ टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल विद नो ब्रोकन एजेस और कट सरफेसेस। जो आप मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मीटर रॉड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप मीटर स्केल यूज़ कर रहे हो, सॉरी सेंटीमीटर स्केल वाला, और मीटर टेप यूज़ कर रहे हो, वो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक उसमें होनी चाहिए, ताकि आपको जो नंबरिंग्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो। द जीरो मार्क शुड बी क्लियरली विजिबल, इफ नॉट यू मे यूज एनी फुल मार्क एज द जीरो पॉइंट। अगर ऐसा होता है कि लेट्स से आपका फॉर एग्जाम्पल अगर 5 तक ये टूटा हुआ है स्केल, ठीक है, तो अब आप जब अपना कोई, अब जैसे लेट्स से पेंसिल है, इसको आपने मेजर करना है, तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रख सकते हैं और आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या होगा फिर आपके लिए, ये 15 नहीं, ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर्स ही होंगे, राइट, क्योंकि 5 सेंटीमीटर्स तो ऑलरेडी आपका खराब है ना स्केल, तो अब आपके पास कितने लेंथ बची स्केल की? 10 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नाउ अगर आपको किसी कर्व्ड लाइन को मेजर करना है, ठीक है, कर्व्ड लाइन, लेट्स से आपको ट्री का जो ट्रंक था उसको मेजर करना था, या फिर कोई भी एक पिलर का डायमीटर को मेजर करना था, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर कर्व्ड लाइन को आप क्या कर सकते हो? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द
कर्व्ड लाइन। अब हम क्या करेंगे, हम एक थ्रेड यूज करेंगे और उस थ्रेड को, जैसे ये है, ये आपकी कर्व्ड लाइन है, ये लाइन ए से बी तक की जो लाइन है, मैं इसको एक अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ। फ्रॉम ए, लेट्स से ये वाली लाइन है जिसको हमें मेजर करना है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ थ्रेड जिसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपने थंब की हेल्प से, फिंगर्स की हेल्प से धीरे धीरे उसको इसके साथ साथ लगाते जाएंगे, फिर यहाँ से प्रेस करेंगे ताकि वो हिले ना, फिर उसको यहाँ तक थोड़ा सा आगे लाएंगे, देन हम थोड़ा और आगे लाएंगे एंड देन फाइनली हम बी पॉइंट तक उसको ले आएंगे थ्रेड को। अब इस थ्रेड को हम रूलर से मेजर कर लेंगे, अगर छोटा है तो रूलर से कर लेंगे, बड़ा है तो मीटर रॉड से कर लेंगे या फिर मेजरिंग जो मीटर टेप है उससे यूज कर लेंगे, राइट। सो इस तरीके से हम कर्व लाइन को भी मेजर कर सकते हैं। नाउ रेस्ट एंड मोशन, अभी हमने लेंथ को मेजर करना सीखा, बट अब हम बात करते हैं मोशन की, यानी ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो कितना डिस्टेंस है वो मीटर में तो नहीं होगा ना, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से छोटी यूनिट भी होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सेंटीमीटर छोटी हुई, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, फिर आती है सेंटीमीटर के बाद नेक्स्ट यूनिट आई मीटर, और फिर मीटर की नेक्स्ट यूनिट होती है किलोमीटर, जो कि हम ज़्यादा लंबी यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। सो विद रिगार्ड टू मोशन वी आइडेंटिफाई टू स्टेट्स, अ बॉडी बीइंग एट रेस्ट और इन मोशन, कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। अगर रुकी हुई है तो मतलब रेस्ट में है, अगर एक जगह से दूसरी जगह यानी पोजीशन चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इज द कार इज मूविंग, फर्स्ट कार रेस्ट में है, दूसरी कार मूविंग है। नाउ रेस्ट क्या होता है, अ पर्सन इज टू बी रेस्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड योर सेल्फ इज कॉन्स्टेंट। कोई चीज रेस्ट पे है, एक तो ये दिख रहा है कि वो मूव नहीं कर रही है, वो अपनी जगह रखी हुई है, ये क्या है, रेस्ट में है। और हम कैसे हैं, हम भी एक जगह हैं। हमारे, अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो रेस्ट में है कोई चीज़, तो हम अपने पर्सपेक्टिव से उसको चेक कर रहे हैं कि वो सामने जो चीज़ है वो रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, राइट। अ पर्सन इज टू बी at rest if the distance between that person and yourself is constant। अब कोई और एक पर्सन है, राइट, कोई एक पर्सन और आपके आगे से निकल रहा है, जा रहा है, आप खड़े हुए हैं। अब आप उसको कैसे बोलेंगे कि वो पर्सन मूव कर रहा है, क्योंकि हम खड़े हैं, हमें वो दिख रहा है, वो हमें क्रॉस करके आगे निकल गया, तभी तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन मूविंग में है। या हम मूव कर रहे हैं लेकिन वो सामने वाला पर्सन अगर रुका हुआ है बट हम मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे पर्सपेक्टिव से वो पर्सन क्या है, स्टॉप्ड है, रेस्ट पोजीशन पे है, राइट। तो अ पर्सन इज टू बी एट रेस्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द योरसेल्फ, एक दूसरा पर्सन और अपने आप के बीच में जो क्या है, डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है, वो भी रुका हुआ है, हम भी रुके हुए हैं, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा डिस्टेंस में, ना हम उससे दूर जा रहे हैं ना हम उसके पास आ रहे हैं। सो दैट पर्सन इज ऑल्सो एट रेस्ट पोजीशन और हम भी रेस्ट पोजीशन पे है। अब कैसे पता चलेगा कि मूविंग है या मोशन है, इसमें क्या होगा कि लेट्स से डिस्टेंस जो है दो लोगों के बीच का, हमारे बीच का और सामने वाले पर्सन के बीच का, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट, या डिक्रीज हो रहा है, तब हमें लगेगा कि मोशन हो रहा है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में नहीं है। अ पर्सन इज इन मोशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्सन एंड योर सेल्फ इज वेरिंग, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। We say that a person is moving away from us if the distance between the person and us is increasing, and we say that person is moving towards us if the distance between the person and us decreasing। कोई हमारी तरफ आ रहा है, सामने एक पर्सन है, वो मेरी तरफ अगर आ रहा है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस
डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स मी एंड अ पर्सन इज गोइंग फार फ्रॉम मी, मुझसे दूर जा रहा है। वो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटिव हैं। सो एब्सोल्यूट इफ द रेफरेंस पॉइंट इज इटसेल्फ एट रेस्ट। एब्सोल्यूट कब बोलेंगे हम? अगर रेफरेंस पॉइंट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे यानी नो मूवमेंट, और रिलेटिव मीन्स समथिंग इज दैट कंपेयर्ड विद अदर थिंग्स। तो दूसरी चीज़ों से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव, राइट। सो नाउ व्हेनेवर वी एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी टू बी एट रेस्ट और इन मोशन, we are expressing the state with respect to some other body which we identify as the frame of reference। तो जब हम किसी चीज़ को ये बोलते हैं कि वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है या मूवमेंट में है, तो इसका मतलब हम किसी एक और चीज़ से, रेफरेंस से उसको कंपेयर कर रहे हैं। कि अगर मैंने बताया था, अगर कोई मुझसे दूर जा रहा है तो यानी हमारे बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कोई मेरे पास आ रहा है तो यानी हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रेफरेंस से रिलेट करके हम बताते हैं कि जो चीज़ है वो रेस्टिंग पोजीशन पे है या मूविंग है, राइट। सो कंसीडर टू पर्सन सीटेड इन अ मूविंग ट्रेन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? दो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं, कोई भी आप ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। फॉर ईच ऑफ देम द अदर इज एट रेस्ट। आप और मैं, हम एक ट्रेन में बैठे हैं, राइट, एक सेम कंपार्टमेंट में बैठे हैं। तो हम दोनों क्या है? ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन हम दोनों क्या हैं? हम दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, राइट, एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो वी आर एट रेस्ट पोजीशन, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ट्रेन चल रही है। क्या मूव कर रहा है? ट्रेन मूव कर रही है। सो व्हाइल द ट्रेन इटसेल्फ इज इन मोशन, ट्रेन मूव कर रही है लेकिन हम रेस्टिंग पोजीशन पे है, राइट। सो देयरफॉर वी मे से दैट अ पर्सन सीटेड इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट। वो पर्सन तो रेस्ट पे है ना, वो पर्सन तो मूव नहीं कर रहा। अब किसी को थोड़ा सा आगे आना है, लेट्स से अपना लगेज उतारना है, कुछ करना है, ट्रेन मूव कर रही है और वो पर्सन भी मूव कर रहा है। अब दोनों मूव कर रहे हैं, राइट। तो हमें रेस्ट कैसे करना है? रेस्टिंग पोजीशन और मोशन दोनों को हमें रेफरेंस पॉइंट से रिलेट करना पड़ेगा। बट वुड दिस स्टेटमेंट बी सेम इफ दे आर व्यूड बाय अ पर्सन ऑन द ग्राउंड, राइट। अब इसको रिवर्स कर दो। अब कोई पर्सन जो ट्रेन के बाहर है, लेट्स से स्टेशन पे पैसेंजर्स खड़े हुए हैं और ट्रेन क्रॉस कर रही है। आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो ट्रेन उस स्टेशन पे नहीं रुकी और वो आगे क्रॉस कर गई। तो जो लोग स्टेशन पर खड़े हुए हैं उनको क्या लगेगा? उनके लिए तो ट्रेन भी मूव कर रही है और आप भी मूव कर रहे हैं, राइट। ट्रेन इज ऑल्सो इन मोशन एंड वी बोथ आर ऑल्सो इन मोशन। किनके लिए? जो लोग स्टेशन पर खड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग क्या हैं? मूविंग हैं। A person on the ground sees the train along with all the passengers and object in it to be in motion। तो क्या हुआ? ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो इसका मतलब हम भी मूव कर रहे हैं। For him, the two persons are in motion. Therefore, we need to modify this statement as a person seated in a moving train is at rest in relation to any other person in the same train but is in motion in relation to any other person outside the train। तो क्या डिपेंड कर रहा है? पहले हम चेक कर रहे थे अपने आप से, हम दो लोग किस में बैठे थे? ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन मूव कर रही है लेकिन हम लोग रेस्टिंग पोजीशन में, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, एक ही जगह पर है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हुआ, अब ट्रेन क्रॉस करी तो जो लोग ट्रेन के बाहर खड़े हैं, ट्रेन को देख रहे हैं, उनके सिनेरियो से क्या हुआ? सिनेरियो अब चेंज हो गया। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? हम मूविंग हैं। जो लोग ट्रेन में बैठे हैं वो भी मूव कर रहे हैं और ट्रेन भी मूव कर रही है। सो पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट। अब अगर हम ट्रेन के अंदर बैठकर बाहर देख रहे हैं, हम भी तो बाहर देख रहे हैं ना, हम पैसेंजर हैं, हम ट्रेन के अंदर हैं, हम रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, हम बाहर से लोगों को
देख रहे हैं हमारी ट्रेन मूव कर रही है। तो हमें क्या दिख रहा है, वो अब जो लोग स्टेशन पे खड़े हैं वो क्या है, वो रेस्ट पोजीशन पे है। अ पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट विद रेफरेंस टू एनी अदर पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड इज इन मोशन विद रेफरेंस टू पर्सन व्यूइंग हिम फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। अब अगर हम पैसेंजर्स जो ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठकर अगर बाहर लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं तो हमें क्या लगेंगे, वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर पैसेंजर्स जो स्टेशन पर ही खड़े हैं वो एक दूसरे को देखकर क्या कहेंगे कि सब रेस्टिंग पोजीशन पे है। सो बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन, मोशन इज सेड टू बी इन चेंज in this position of the body with respect to the time as measured by a particular observer in a particular frame of reference. Hope this is clear to all of you. Right now, kinds of motion, हम motion कितनी तरीके के हैं वो पढ़ेंगे। So types of motion है transitional, जिसको हम linear, vibrational और oscillation और rotational and random। तो ये मोशन के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तीनों एक ही तरीके के मोशन हैं, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। सो लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है सिंपल, तो इसको बोलेंगे लीनियर यानी लाइन। आप इसको रेफरेंस के लिए समझ सकते हो, लीनियर को आप रेफरेंस के लिए लाइन समझ सकते हो। लीनियर, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ये तीनों एक ही तरीके के मोशन हैं अगर कोई भी चीज स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है। The motion of a body along a straight line, so this is called rectilinear motion, while a body is moving in a straight line or along the curved line in a plane, this is called linear or translatory motion. अब क्या है, जैसे कि कार इज ड्रिवन ऑन द रोड, सीधी सीधी कार जा रही है, राइट। अब ऐसा होता है कि जब हम कार से जा रहे हैं वो रास्ता तो सीधा है, लेकिन बीच बीच में कभी हल्का सा राइट, हल्का सा लेफ्ट हो जाता है, हल्का सा टर्न आ जाता है। हालांकि रोड वो एक ही है, राइट। लेट्स से हम इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, इस लाइन पर आ रहे हैं, हल्का सा ऐसे हो गई, फिर सीधी हो गई, फिर हल्का सा ऐसे हो गई, फिर सीधी हो गई, फिर हल्का सा घूम कर। तो ये रोड एक ही है, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपका लेफ्ट राइट ऐसे मूवमेंट हो जाता है, तो ये थोड़े थोड़े कर्व्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो मोशन बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है तो ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर थोड़े थोड़े कर्व्ड हैं, लेकिन जा वो सेम डायरेक्शन में जाए, ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट राइट टर्न कर गया बिल्कुल, या इधर लेफ्ट टर्न कर गया, ऐसा नहीं है। रोड यही है, यही कार सीधा ट्रैवल कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। सो व्हाइल अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ कर्व्ड लाइन, तो हमारी जो कार है वो इस रोड पे मूव कर रही है, बट हल्का सा रोड ऐसे टर्न हो गई, तो हम फिर से इसमें ऐसे टर्न लेके फिर इधर आ गए, ये एक टर्न और आ गया, फिर एक थोड़ा सा टर्न आ गया, लेकिन हम एक ही रास्ते पे, हम जा स्ट्रेट पाथ पे रहे हैं, लेकिन वो बीच में से थोड़े थोड़े कर्व अगर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अदरवाइज तीनों सेम ही है, स्ट्रेट पाथ पे अगर मोशन हो रहा होता है, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर और सॉरी रेक्टिलिनियर, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं कोई लेफ्ट राइट कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। हल्का सा कर्व अगर है, बट कर्व होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, हम लेफ्ट चले गए या राइट चले गए, हल्का सा कर्व करके वापस बैक टू द स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब जैसे द मोशन ऑफ कार ड्रिवन ऑन द रोड, मैंने अभी बताया कि हम ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमेशा सीधे सीधे रास्ते, बिल्कुल सीधी रोड हो, हल्का सा कभी कभी
जो बीच में आप देखते हो बीच में से राउंड अबाउट आता है सेंटर में, उसको आपने हल्का सा लेके फिर आप सीधा चले गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रोज हल्का सा लेफ्ट राइट होती है, लेकिन फिर से आप स्ट्रेट पाथ पे आ जाते हो। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ 100 मीटर स्प्रिंटर और मार्च पास्ट ऑफ द सोल्जर। सो अब ये बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, सोल्जर्स मार्च पास कर रहे हैं, तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। इसके अलावा स्प्रिंटर जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट। तो जो पर्सन स्प्रिंट कर रहा है उसको बोलते हैं स्प्रिंटर। सो 100 मीटर रेस या 100 मीटर स्प्रिंटर, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ सर्क्यूलर मोशन, अब सेकेंड टाइप ऑफ मोशन आता है सर्क्यूलर, जो गोल गोल घूमते हैं सर्कल में, सर्क्यूलर। सो द मोशन इन विच द बॉडी traverses a circular path is called circular motion. This is a kind of translatory motion, जो हमने अभी किया ट्रांसलेटरी, बीच बीच में थोड़ा सा कर्व आ जाता है ना, तो अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन की तरह का ही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन वेयर द बॉडी रीचेस द इनिशियल पोजीशन, घूम कर वापस जहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, घूम कर वापस यहाँ पर ही आ जाएगी, राइट। तो ये होता है आपका सर्क्यूलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। सो वेयर द बॉडी रीचेस द इनिशियल पोजीशन each time it completes the circle. For example, motion of the hands of the clock. तो ये क्लॉक है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वापस फिर से 12 से स्टार्ट हुआ तो वापस घूम के फिर 12 पे आ गया, 1 से स्टार्ट हुआ वापस घूम के फिर 1 पे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर पोजीशन, कि कोई चीज़ मूव करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आती है। सो ईच पार्टिकल्स ऑफ आवर बॉडी एग्जीक्यूटिंग रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। नाउ कम टू द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होता है कुछ भी तरीके का, कभी सीधा, कभी लेफ्ट, कभी राइट। जैसे फुटबॉल खेलता है प्लेयर, तो क्या होता है, कभी वो लेफ्ट किक करता है, कभी राइट क्लिक करता है, कभी स्ट्रेट करता है, कैसे भी करता है। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसके अलावा जैसे फ्लाइज हैं, मस्किटोज हैं, वो कभी कहाँ उड़ रहे हैं, कभी कहाँ उड़ रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन। सो इर्रेगुलर मोशन of bodies changing the nature of motion frequently, this is called random motion। वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जैसे कि आप खेल रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। Now come to the rotatory motion. So the motion of an object is said to be rotatory if the motion of all particles of the body is circular along a circular path with respect to an imaginary line called the axis of rotation। जैसे आपने देखा होगा रोटेशन, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, राइट, घूम रही है बार बार। तो रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इट्स एक्सेस, तो हम क्या बोलते हैं, अर्थ अपनी एक्सेस पर रोटेट कर रही है, यानी अपना एक पॉइंट है उसी लाइन पर बार बार रोटेट कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। दिस हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स और रोटेट। ये मोस्टली कब होता है, जब कोई चीज़ स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है। स्पिन करना और रोटेट करना, स्पिन मतलब एक डिफाइंड पाथ पर बार ऐसे स्पिन कर रही है, घूम रही है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्पिनिंग टॉप, जो हम लट्टू होता है, टॉप होता है, उसको घुमाते हैं तो स्पिनिंग टॉप इसका एग्जाम्पल है किसका, रोटेशन का, रोटेशन मोशन का। द व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल, जो कार जो है वो कार में क्या होते हैं, व्हील घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो वो जो रोटेशन होता है उसको रोटेटरी मोशन बोला जाता है। इसके अलावा द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन। नाउ कम टू द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, राइट। जैसे कि अगर आपने क्लॉक में टाइम सेट किया है 5 बजे का, आपने बोला कि हर 1 घंटे में ये जो पेंडुलम है या इससे हमें आवाज़ आए कि हाँ 1 घंटा हो गया है, तो हर 1 घंटे के बाद जो आवाज़ आती है दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, यानी कि उस पर्टिकुलर डिफाइंड पीरियड के बाद वो दोबारा से
आवाज़ प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन टाइम, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल है बाउंसिंग बॉल, बॉल को जब आप बाउंस कर रहे हो वो, अ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, everybody executing circular motion can be said be executing periodic motion, everybody executing oscillatory motion, oscillatory motion कहाँ होता है चिल्ड्रन, पेंडुलम में, ऑसिलेशन बोलते हैं ना। पेंडुलम में क्या होता है, जो बॉब होता है वो सेंटर पोजीशन पे हैंग होता है, वो यहाँ से इधर मूव करता है और यहाँ से इधर मूव करता है, सो ए और बी, राइट। तो ये सेंटर पोजीशन है, ये हार्डली यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है वो टाइम, जब हम नोट करते हैं कि कितने टाइम में वो अपने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक डिफाइंड टाइम के बाद वापस से वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आता है, राइट। यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो वो टाइम पीरियड सेम होता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सो एवरीबडी एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन कैन बी सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन। तो ऑसिलेशन यानी ऑसिलेटरी मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं, क्योंकि सेम टाइम पर बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ कम टू दी ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन जो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। सो ऑसिलेटरी मोशन इज रिस्पेक्टिव एंड फ्लक्चुएट्स बिटवीन टू लोकेशंस, टू एंड फ्रो। सो टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम का हमने देखा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। सो एन ऑसिलेटरी टेबल फैन में भी जो मोशन हो रहा है, जो अंदर की जो विंग्स हैं वो घूम रहे हैं। द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक एंड द स्विंगिंग क्रेडल, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, ऑसिलेटरी मोशन के, राइट। सो नाउ बॉडी एग्जीक्यूटिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन। सो बहुत बार जो चीज़ मोशन में होती है ज़रूरी नहीं है उसमें एक ही तरीके का मोशन हो, उसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के भी मोशन हो सकते हैं। सो सम ऑफ द बॉडीज इन मोशन मे बी एग्जीक्यूटिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, एक टाइम पर दोनों तरीके के मोशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल है अ रनिंग व्हीकल एग्जीक्यूट बोथ ट्रांसलेटरी, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी है उसमें, और एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो टायर्स में रोटेटरी मोशन है और कार सीधी जा रही है, ऑल्दो कार और टायर सब एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दो तरीके के मोशन हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और साइड, हम स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं बेसिकली, जब हम कार या कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसको रेक्टिलिनियर में इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि रोड्स पर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बेंड्स होते हैं, ऑल्दो वो स्ट्रेट पाथ होता है बट फिर भी थोड़े बेंड्स होते हैं, सो वी काउंटेड एज अ ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन यानी कार स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, बट व्हील्स कैसा मोशन शो कर रहे हैं, रोटेशन, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स हैं और सिर्फ गोल 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 घूम रहे हैं, राइट। तो ये दो तरीके के मोशंस होते हैं। नेक्स्ट इज अ स्पिनिंग बिलियर्ड्स बॉल, ये बिलियर्ड्स खेल रहा है पर्सन, सो बिलियर्ड्स बॉल एग्जीक्यूट बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो बॉल जब मूव करती है तो वो भी रोटेट होती है और साथ साथ क्या होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, यानी सीधा मोशन होता है, लेकिन बॉल साथ साथ बॉल भी घूमती रहती है, राइट। इस जैसे हमारा रोटेशन अर्थ में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों होता है, अपनी एक्सेस पे भी अर्थ रोटेट करती रहती है और साथ साथ ऐसे ऐसे भी घूमती रहती है। तो दो तरीके के मोशन होते हैं और ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का भी। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स लगते हैं ना डे एंड नाइट में, वो बढ़ता तो नहीं है ना टाइम, तो रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं और रेवोल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, तो ये टाइम हमेशा सेम रहता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीरियोडिक motion, right? So now we have some new words, so you can go through these points and summary points. Now come on to the exercise part, choose and tick the correct option. The comparison of an unknown quantity with a known quantity, so this is called
मेजरमेंट, यानी आपको एक क्वांटिटी पता है और एक क्वांटिटी जो पता नहीं है उसको आप मेजर कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट. सो द यूनिट यू विल यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम. क्लासरूम की लेंथ अगर आपने करनी है तो आप यूज करेंगे मीटर, क्योंकि मीटर से छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर की, राइट, और मीटर से बड़ी यूनिट हुई किलोमीटर. तो हम क्लासरूम की लेंथ करेंगे मिलीमीटर में, सॉरी मीटर में. Now the unit you will use to measure the distance from Delhi to Mumbai. तो आप क्या यूज करोगे? किलोमीटर. So children, next is which of the following shows no change in direction of a moving body. कोई बॉडी मूव कर रही है लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं है, वो किस तरीके का मोशन है? इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है. अ काइट फ्लाई इन स्काई, राइट. अगर एक काइट उड़ रही है तो कैसा मोशन है वो बेसिकली रैंडम मोशन है, क्योंकि वो कभी लेफ्ट हो जाएगी, कभी राइट हो जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, तो उसके मोशंस चेंज होते रहते हैं. नाउ कम टू द राइट, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. अ हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस मेजर्ड बाय आर्म. क्या हैंड स्पैन आर्म से मेजर होता है? सो दिस इज फॉल्स. हैंड स्पैन आपके हैंड से मेजर होता है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. Next is a person is to be at rest if the distance between the person and ourself is constant. Yes, this is true. अगर हमारे बीच का और सामने वाले पर्सन के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका मतलब रेस्ट पर है. Next is the motion of a body along a straight line. So this is called rectilinear motion. Yes, this is true. नेक्स्ट इज अ रनिंग व्हीकल एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन. येस, कोई व्हीकल अगर चल रहा है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं या उसको कैसा मोशन मानते हैं? ऑल्दो वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, बट हमें उसको ट्रांसलेटरी मोशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कोई मूवमेंट भी होता है, मतलब कभी इधर घूमा, थोड़ा इधर घूमा, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज fill up. So children, next question is fill in the blank. First fill up is the distance between any 2 points placed apart from each other is called length. Next one, the standard unit of distance is meter. Next is the distance between any 2 points placed apart from each other. So this is called length. Oh, ये दोबारा repeat हुआ है. Next is the motion of a body in straight line. So this is defined as rectilinear motion, and the cyclist going around a curve shows curvilinear motion. So children, hope you have enjoyed the lesson, and I'll see you in the next class. Till then, stay tuned for more videos. Bye.